Hello friends, last time we have solved 4 examples of chapter number 12, example number 1, 2, 3 and 4 that already we have solved. Now from today the example number 12.5. Just read the question carefully. A 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours in an orbit having radius of 8000 km. Assuming that both angular momentum postulate apply to satellite just as it does an electron in hydrogen atom, find the quantum number of the orbit of the satellite. Here given as a satellite is revolving around the Earth, the mass of the satellite given and its time period is also given, and just we have to apply the Bose postulate for the satellite as well as we can apply the postulate for the atomic model. जो भी एटॉमिक मॉडल में हमें बोस पोस्टुलेट अप्लाई करते हैं, सेम अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, देन व्हाट अबाउट द क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट, मतलब वही हम अगर पोस्टुलेट अप्लाई करें तो जो भी ऐसे सैटेलाइट है उसका ऐसे n का नंबर, ऐसे क्वांटम नंबर मतलब n कि वो कौन सी ऑर्बिटल नंबर में होगा सैटेलाइट, वो करना है. अब उसके लिए हमें mass of the satellite given, therefore we can say the m is equal to 10 kg. This is called mass of the satellite, and given that it circles Earth once every 2 hours, मतलब time period is given as a 2 hours. T is equal to 2 hours because it completes its one revolution in 2 hours. Therefore, if we convert into second, then 3600. Therefore, total about 7200 second. This is the time period, and radius of the orbit is also given as a r is equal to 8000 kilometer. That's why we can say if we convert kilometer into meter, then 8 into 10⁶ meter. Now our interest to calculate quantum number for this particular satellite. Therefore we have to use here Bose postulate. तो अगर हम Bose postulate use करें कि using Bose postulate, तब जो भी यूज करना है वो हम बोलेंगे रिगार्डिंग विद द एंगुलर मोमेंटम. देन एंगुलर मोमेंटम इज mvr. फॉर द नंबर वी कैन से n, then mv and rn is nh/2π. our interest to calculate quantum number means n, then we make the subject n, therefore we can say it is, और अगर हम यहाँ पर पहले ऐसा कर देते कि m v जो है, तो यहाँ पर हमें ऑर्बिटल स्पीड नहीं दे रहे, टाइम पीरियड गिवन, then we can say v is 2πr upon t into rn is equal to nh/2π. Now if we make the subject n, therefore it is m into 4π square into rn square upon t into h. Now all the things are given. The mass is given 10 kg. We know the value of pi 3.14 square. Orbital radius given 8 into 10⁶ square, and
the time period given 7200, and this one is called Planck constant h. We know the value 6.6 10 to the power minus 34. Do the calculation and we can get answer is 0.5287 10 raised to 46. Therefore अगर हमें यहाँ पर 10 raised to 45 करना है, then we have to multiply 10. When we multiply 10, it is 5.287. So 5.287 we can say 5.29 into 10 raised to 45. And अगर ऐसा करना है तो 5.3 भी बोल सकते हैं 10 raised to 45. So this is the solution for the example 12.5. अब as a 12.6, अब 12.6 से रिलेटेड बोला है कि यूजिंग Rydberg's formula calculate the wavelength of first 4 spectral line in Lyman series of hydrogen atom. If we think about the Lyman series, just remember the equation for the Lyman series. तो कोई भी ऐसे सीरीज रिलेटेड एग्जांपल हो, सबसे पहले सीरीज पर कंसंट्रेट करो. सबसे पहले बोलेंगे कि फॉर Lyman series, then we know the equation for the Lyman series 1 upon lambda is equal to r 1 upon 1 square minus 1 upon n square. यहाँ पर बोला है कि यूज Rydberg's फॉर्मूला. यहाँ पर हमें r की वैल्यू नहीं लिखनी है, पहले फॉर्मूला करना है. तो r का फॉर्मूला यूज करो. यूजिंग r, just remember the equation for the Rydberg constant e raised to 4m upon 8 epsilon naught square ch cube. If we place the value of r, then 1 upon lambda is equal to e raised to 4m upon 8 epsilon naught square ch cube 1 minus 1 upon n square. अब यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि ये c यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, एक h भी ले लेते हैं. तो यहाँ पर हुआ ऐसे h c upon lambda and this equation like e raised to 4m upon 8 epsilon naught square h square. और यहाँ पर ऐसा कर दो, LCM ले लो. That's why it is h square minus 1 upon n square. अब जो भी हमने एनर्जी की फॉर्मूला डिराइव की, उसमें ये इक्वेशन आती थी इन बिटवीन e raised to 4m upon 8 epsilon naught square h square. तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि here e raised to 4m upon 8 epsilon naught square h square, उसकी वैल्यू है 12.76, सॉरी 21.76 into the power minus 19 जूल. इसकी कैलकुलेशन कर देना अपने आप, सभी वैल्यूज फिक्स है. Then it is 21.76 10 to the power minus 19 जूल. तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. और our interest to calculate wavelength, तो पहले अगर हम बोले hc upon lambda is 21.76 10 to the power minus 19 and n square minus 1 upon n square. Just make subject lambda here first. Then lambda को subject करेंगे तो ये होगा hc into n square upon 21.76 10 to the power minus 19 into n square minus 1. We know the value of h, Planck constant 6.625 10 raised to minus 34. Value of c, speed of light 3 into
8 अपॉन 21.76 10 to the power minus 19 और it is n square upon n square minus 1। अब देखो यहां पर हमने बोला है यूजिंग रिडबर्ग्स इक्वेशन। अगर ऐसा बोले कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू यूज करो तो फिर ये इतनी सारी कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे r की वैल्यू हम रख दें इजीली हमें वेवलेंथ मिलेगी, बट यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि यूजिंग रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, तो फिर ये पूरी कैलकुलेशन हमें दिखानी पड़े। अब इसकी जो भी वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करो, देन लेम्डा जो हमें मिलेगा वो कुछ इस टर्म्स में मिलेगा कि 931.4 10 to the power minus 10 और बोलेंगे हम मल्टीप्लाई में n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अगर लिख दूं देन 913.4 10 to the power minus 10 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये एक हमें जनरल फॉर्मूला मिली फॉर द लाइमन सीरीज यूजिंग रिडबर्ग्स फॉर्मूला। अब यही इक्वेशन को अगर हम रेफरेंस ले देन वेवलेंथ इज 913.4 10 to the power minus 10 n square upon n square minus 1। यहाँ पर बोला है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज। तब यहां से बोलेंगे कि फर्स्ट लाइन, तो फॉर फर्स्ट लाइन के लिए n is equal to 2 and first line we can say it is also alpha line। then here just write 2 1 क्योंकि 1 तो उसका बेसिक हुआ, अब 2 से 1 ट्रांजिशन हुआ। से lambda 21 is equal to 913.4 10 to the power minus 10 and 10 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 minus 1 3। just do the necessary calculation and we can get answer for first line of the Lyman series like 1217.8 10 to the power minus 10 मीटर, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 1218 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब अगर हमें ऐसे ही करना है फॉर द सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, तो सेकंड लाइन आल्सो वी कैन से बीटा लाइन एंड for second line we know that n is equal to 3, it is also called beta line। just use the same equation, we can say lambda 31 and it is 913.4 10 to the power minus 10 and 3 है तो 9 upon 8 आएगा और उसके कैलकुलेशन कर दो। अब देन फॉर द सेकंड लाइन वी कैन गेट आंसर लाइक 1027.5 10 to the power minus 10 मीटर। देन इट इज 1028 एंगस्ट्रॉम। बाय द सेम वे वी कैन से फॉर थर्ड लाइन, क्योंकि हमें पूछा है कि फर्स्ट 4 लाइंस की हमें वेवलेंथ करनी है पर्टिकुलरली लाइमन सीरीज के लिए। तो थर्ड लाइन के लिए n is equal to 4 that we can say gamma line, so we can say it is lambda 41। the same way 913.4 10 to the power minus 10 और अगर 4 है तो स्क्वायर के हिसाब से होगा 16 upon 15।
डू द नेसेसरी कैलकुलेशन। और थर्ड लाइन का हमें आंसर मिलेगा 974.29 into the power -10 मीटर। मीन्स थर्ड लाइन की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट 974.3 एंगस्ट्रॉम। By the same way, just calculate wavelength for fourth line. We can say for fourth line n is equal to 5। अगर इसको बोलना है तो it is called delta line। अल्फा गेमा अल्फा बीटा गेमा डेल्टा। Then it is called lambda 5 913.4 10 to the power -10 and it is 25/24। तो उसकी हमें कुछ वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट मिलेगी 951.45 10 to the power -10 मीटर। इट इज 951.4 एंगस्ट्रॉम। तो जो भी रिडबर्ग कांस्टेंट है पहले उसकी वैल्यूज रख के इक्वेशंस रख के ये हमने कॉमन इक्वेशन बना दी। दिस इज फॉर लाइमन सीरीज। अब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के लिए हमारे पास नंबर्स है। 1 by 1 वैल्यूज रखते जाओ, हमें उसके आंसर्स मिलेंगे। नाउ जस्ट गो फॉर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में नंबर 1 जो ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जस्ट डू बाय योरसेल्फ। नंबर 2, तो नंबर 2 में दिया है हमें कि सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन ए प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल। हाइड्रोजन इज सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब जो भी हमें अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग है, इट इज बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड न्यूक्लियस। यही हमें अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करना है बिटवीन एज ए अल्फा पार्टिकल एंड हाइड्रोजन एटम। मतलब whenever alpha particles are bombarded on hydrogen atom, तब हमें उसमें ऐसे किस टाइप का स्कैटरिंग मिले। बट इफ वी थिंक अबाउट द हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम ओनली one proton present inside of the nucleus। और अल्फा पार्टिकल्स तो हमने बोला इट possess 2 protons and 2 neutrons। तब अगर हम मास कंपेयर करें तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन के ऊपर हम अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करेंगे तब हमें ऐसा कोई भी टाइप का स्कैटरिंग नहीं मिलेगा। जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली ऐसे पास हो जाएंगे। इट नॉट एक्सपीरियंस मच रिपल्सिव फोर्स विच वॉज प्रेजेंट इन गोल्ड फॉइल, क्योंकि गोल्ड के अंदर उसका जो एटम है उसके अंदर तो 79 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तब वो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन तो ऐसे वो बोलेंगे लाइटर पार्टिकल है, तो लाइटर पार्टिकल हेवी पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो तो ऐसे डायरेक्टली पास हो जाएगा। और वी कैन से whenever alpha particle bombarded on the hydrogen atom, we cannot see any type of scattering of alpha particle। तब अब अगर हम थर्ड एक्सरसाइज का नंबर 3 देखें तो एक्सरसाइज के नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्कल सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। अब अगर हम पास्कल सीरीज सोचे, जस्ट
जनरल फॉर्मूला फॉर द पास्टन सीरीज। ये जो है वो एक्सरसाइज क्या बोलेंगे, नंबर 3। और पास्टन सीरीज बोला तो पास्टन सीरीज की इक्वेशन याद करो, सीक्वेंस याद करो। लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट फंड मींस जनरल इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ फॉर द पास्टन सीरीज ऐसे लिखेंगे कि फॉर पास्टन सीरीज 1/λ is equal to r 1/3² minus 1/n²। अब इसने बोला है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम वेवलेंथ के लिए वी आर चूजिंग n is equal to infinity। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे तो हम नेक्स्ट नंबर यूज करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट लाइन में भी फर्स्ट मतलब नेक्स्ट नंबर, लेकिन यहाँ पर पूछा है मिनिमम वेवलेंथ। फॉर मिनिमम वेवलेंथ n is equal to infinity and we know the answer of 1/infinity is 0. That's why 1/λ is r/9. Therefore λ is equal to 9/r। r की वैल्यू याद करो, it is 1.09737 10 to the power 7। Do the necessary calculation और हमें जो भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो हमें मिल जाएगी 820.4 और 10 to the power -9 के टर्म्स में मिलेगा। अब -9 है इसलिए बोल देंगे 820.4 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर करोगे तो ये 8204 10 to the power -10, इसीलिए ये हो जाएगा 8204 एंगस्ट्रॉम। कोई भी टर्म्स में तुम आंसर लिख सकते हो, आइदर इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ऐसा कर दो कि इट इज मिनिमम, तो लैम्ब्डा मिनिमम बोलेंगे इसको, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज। नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट रीड इट आउट द क्वेश्चन 4 for the exercise. A difference of 2.3 electron volt separate two energy levels in atom. What is the frequency and radiation emitted when atom makes transition from the upper level to the lower level? तो हमें यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separate two energy levels in atom given, मतलब this is the separation between two energy levels. The energy given as a 2.3 electron volt. ये जो given है this is for difference of any two energy levels है, और उसी से रिलेटेड हमें करना है उसकी frequency कि whenever it transitions from higher energy level to the lower energy level. Then we know the equation for the energy. E is equal to h nu. Otherwise we can say hc upon lambda. And c upon lambda is nu. Therefore it is 2.3 electron volt है तो 1.6 10 to the power -19 कर दो, और इसके लिए वाला रेफरेंस हमें करना है यहाँ पर। Then we can say E is equal to hc अपॉन लैम्ब्डा कर दो, then c अपॉन लैम्ब्डा होता है न्यू, therefore it is h न्यू। बस हमें करनी है फ्रीक्वेंसी, then frequency न्यू is equal to h को डिवाइड कर दो तो 2.3 1.6 10 to the power -19 अपॉन 6.625 10 to the power -34। इसकी कैलकुलेशन करो तब कैलकुलेशन में हमें मिलेगा 5.6 10 to the power
which SS is 14. So 5.6 10 to the power 14 or unit is hertz. This is the frequency emitted whenever electron jump from higher to lower. Its energy difference is 2.3 electron volt.